Copernicus, and today's lecture is about the history of gravitation, about the history of our understanding of gravitation or gravitational forces you may say. आज हम लोग ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट फ्रॉम द न्यूटनियन थियरी दैट एवरी टू masses in the universe attract each other to Einstein's theory that there is nothing like gravity, instead there is curvature of space-time. But the important point is we are not going to study it any mathematically. So we will discuss over it. It is just somewhat discussion you may say over the history of our understanding and development of gravitational force. So actually please share the video because today I am just making the video while walking. Alright, let's come. Jokes apart. Gravity एक्चुअल में इसकी कहानी तब शुरू होती है when people would wonder by looking at the sky that if really Nicholas Copernicus is really correct, means the Earth and all the other known planets at that time orbit around the sun. तो ये सन के अराउंड क्यों ऑर्बिट करते हैं? क्योंकि निकोलस कोपरनिकस ने एक बार कहा था कि all the planets as well as Earth orbits the sun, they go around revolutions around the sun. तो क्वेश्चन अराइज होता है that why do they orbit the sun? What is the true reason for it? And since many great scientists even supported the Copernicus theory, but it was not very widely supported. But scientists like Johannes Kepler and Galileo Galilei had supported it very late because at that time people believed in Aristotle, जिन्होंने कहा था that sun as well as all other planets orbit around the earth which is at the center of universe. लेकिन फिर आए Johannes Kepler and Galileo Galilei. अब Johannes Kepler ने 3 laws दिए जिनको आज Kepler's law of planetary motion कहा जाता है. केपलर ने उसमें एक्चुअल में कोपरनिकस की थ्योरी सपोर्ट की थी, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बाय ब्रिंगिंग सम चेंजेस टू कोपरनिकस थ्योरी. समवट लाइक कोपरनिकस ने कहा था दैट द अर्थ गोज अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन फिर जोहान्स केपलर ने कहा दैट नो, दिस इज नॉट सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ऑर्बिट. द अर्थ एंड ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. सो देयर वर सम मॉडिफिकेशन ऑफ कोपरनिकस थ्योरी. जो केपलर का फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट नियम, ये था कि द प्लैनेट्स गो इन एलिप्स विथ सन एट वन फोकस. ये था केपलर का फर्स्ट लॉ. सो दिस इज नॉट सर्कुलर पाथ, इंस्टेड एन इलिप्टिकल पाथ. So if you don't know what is an ellipse, so this is somewhat an elongated circle and this is known as an ellipse. फिर उनका जो सेकंड था, सेकंड केपलर लॉ या फिर केपलर्स सेकंड लॉ, ये था दैट द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और उसके बाद जो थर्ड लॉ था, दिस एक्चुअली प्रेडिक्टेड अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट. इसने कहा दैट द टाइम पीरियड ऑफ एनी टू प्लैनेट्स रियली is proportional to A. So actually this is really not A, but instead the time period is squared, means T is proportional to the A cube, semi-major axis cubed. Means by this we can derive an expression for time period, means T is proportional to A to the power 3 by 2. So those were Kepler's 3 law. अब ये बहुत अच्छे से कोपरनिकस की थियरी को मॉडिफाई कर रहे थे and they really matched the observation. Actually the reason for people believing in Aristotle theory that it was much simpler and it stated really much about heavens and hells and it was in accordance with the Bible. That's why people believed in Aristotle theory. और कोपरनिकस की theory observations से match नहीं कर रही थी. But when people saw after the modification of Copernicus theory using Kepler's law, जब people ने देखा that yeah they really match with the observations, so they found that maybe Johannes Kepler is correct, Galileo Galilei is correct, and finally Nicholas Copernicus is also correct. While at the same time when Johannes Kepler was developing Kepler's law, तब Galileo Galilei लॉ ऑफ इनर्शिया की स्टडी कर रहे थे, जिसको बाद में अडॉप्ट किया सर आइजैक न्यूटन ने इन द फॉर्म ऑफ हिज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Galileo Galilei डायनेमिक्स डेवलप कर रहे थे अबाउट व्हाट कॉजेज द बॉडीज टू मूव. उन्होंने कहा कि जब तक हम किसी बॉडी को टच ना करें एंड उस बॉडी के साथ इंटरैक्ट ना करें, द बॉडीज
speed stays the same and it stays in the same direction. Either it remains or rest or it continues to move with the same velocity in the same direction with the same constant speed. उसके बाद इसको अडॉप्ट किया सर आइजैक न्यूटन ने, एंड सर आइजैक न्यूटन सेड इन हिज फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, अ वेरी पॉपुलर टेक्स्ट बुक, द मोस्ट पॉपुलर फिजिक्स टेक्स्ट बुक, उसमें सर आइजैक न्यूटन ने यही लॉ ऑफ इनर्शिया को और अच्छे से एक्सप्लेन किया एज हिज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस इफ वी सी, so what happens that when we touch a body, when we apply force on a body, when we interact with the body's state changes, while when we don't, so the body will continue with the same speed in the same direction, or if it was initially at rest, तो ये body rest पे ही रहेगी. And then it came to be known as the law of inertia, more popular by its second name, namely the Newton's first law of motion. And while the second law of motion describes कि जब force apply हुआ तब ये body कैसे react करेगी, it shows the mathematical relationship between force and acceleration, means rate of change of velocity with respect to time of the body. अब while Galileo was developing this, Galileo even had great contribution in this. Actually, as believed, Galileo ने telescope को invent किया था, and he also discovered the 4 largest moons of Jupiter, and he discovered many things using his telescope, and he also found that actually the Earth and all the planets orbit around the sun. लेकिन फिर एक question arise हुआ in people's mind that why do planets orbit around the sun? Why does Earth orbit around the sun? And why does Moon orbit around the Earth? एक बहुत ही पहले की theory थी कि according to religions, this is not scientific, instead religious, कि behind the planets were angels, and angels were pushing the planets to go in elliptical orbit around the sun. But this was not much scientific, so right. उसके बाद क्या हुआ that it was still a problem in Sir Isaac Newton's time. फिर Sir Isaac Newton, as believed by the story of the apple and Sir Isaac Newton, you must have heard, I'm sure you must have heard, लेकिन ये totally true, it isn't said to be totally true. Some people believe in it, while some consider it to be an apocryphal, and it is believed that during time of Sir Isaac Newton's death, Sir Isaac Newton ने ये story सिर्फ अपने एक friend को सुनाई थी, right? तो if this story is correct, तो सर आइजैक न्यूटन एक बार एप्पल ट्री के अंडर सिट किए थे, और उसके बाद ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिलोसफी. उसके बाद सडनली एन एप्पल ब्रोक फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन टू हिज हेड. उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने सोचा कि ये एप्पल जब नीचे गिरा, सो इफ द एप्पल रियली फॉल्स, तो मून नीचे क्यों नहीं गिरता है? क्या मून सच में नीचे गिरता है? अब सर आइजैक न्यूटन रियली वांटेड टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन. फिर उन्होंने पाया कि जो मैथ्स अभी हमारे पास है, जो मैथमेटिशियंस के पास है, वो अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है ताकि ये इस क्वेश्चन को रिप्लाई कर सके कि अगर अर्थ सारी ऑब्जेक्ट्स को अपने पास अट्रैक्ट करे रखती है, तो क्या ये मून को भी अट्रैक्ट करती है? क्या मून भी अर्थ पे गिरता है? So he developed a new branch of mathematics, very popular by its name called calculus. तब इन्होंने कैलकुलस का इन्वेंशन किया, और यूजिंग द वेज ऑफ कैलकुलस इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, रिप्लाइंग यस द मून ऑल्सो फॉल्स, बट इट डजंट फॉल द वे दैट इट फॉल्स एंड कोलाइड्स द अर्थ. नो, दिस इज नॉट फॉलिंग ऑफ मून, इंस्टेड द मून ऑर्बिट्स द अर्थ. अब सर आइजैक न्यूटन ने एक टोटली न्यू वे टू डिस्क्राइब अबाउट इट, ही डेवलप्ड इट. उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स हमें ज़मीन से पकड़े रहती है, व्हाट फोर्स causes us to stay at rest on the floor, the same is the force that causes all the planets to move around the sun in elliptical orbit according to Kepler's law. सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि एक्चुअल में क्या होता है कि every two objects in the universe अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर आपके पास ये एक बॉडी है एंड ये एक बॉडी है, दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एंड ये जो फोर्स होगा दैट इज इनविजिबल बिटवीन द बॉडीज. जनरली ये बिटवीन ऑल द बॉडीज अराउंड अस नहीं दिखता है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि ये फोर्स दो बॉडीज को अट्रैक्ट करती है, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दिस डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ टू बॉडी.
मास मीन्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो जितना मैटर किसी बॉडी में होगा उतना हाई ही उस बॉडी का मास होगा। तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि ये जो फोर्स रहेगी ये दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। तो अगर आपने इस मास के प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दिया, फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज कर दिया, सो द फोर्स विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। फिर सर आइजैक न्यूटन ने अपनी स्टडीज से बताया कि एक्चुअल में जब आप इन बॉडीज को फार्दर अपार्ट, सपोज आपने इन बॉडीज की सेपरेशन x अमाउंट से इंक्रीज कर दी, तब फोर्स x स्क्वायर अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने इन्हें x अमाउंट से और क्लोज ला दिया तो फोर्स x स्क्वायर अमाउंट से और इंक्रीज हो जाएगा। So somehow Sir Isaac Newton predicted that this force is inversely proportional to the square of distance between them. So if you just what I really said, that really holds. तब Sir Isaac Newton ने a very popular known formula बताया that F, which is the gravitational force, equals capital G m1 m2 over r square, where capital G is a proportionality constant that really cannot be neglected while the study of gravitational force. लेकिन अभी भी सर आइजैक न्यूटन के पास कैपिटल जी की वैल्यू नहीं पता थी एंड नो वन न्यू एट दैट टाइम। लेकिन फिर क्या हुआ, एज सर आइजैक न्यूटन गेव दिस फॉर्मूला, दिस रियली प्रेडिक्टेड द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि जैसे ये दो बॉडीज को अट्रैक्ट करती है वैसे ही ये अर्थ एंड ऑल द प्लैनेट्स को सन के ऑर्बिट में होल्ड करके रखती है, एंड द सेम वे द अर्थ होल्ड्स द ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड इट। तो दिस वेल डिस्क्राइब्ड अबाउट द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स, राइट। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू किसी को नहीं पता थी। फिर ईयर्स लेटर, इनफैक्ट अबाउट सम सेंचुरी, व्हाट हैपेंड कि हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट ने कैपिटल जी की वैल्यू अपने कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से पता किया एंड ही फाउंड द वैल्यू टू बी एज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जब उन्होंने ये कैपिटल जी की वैल्यू निकाली तब इससे हम ये भी पता चल सकता है कि अगर 1 kg एंड 1 kg के दो मासेस हैं एंड वी आर सेपरेटिंग देम टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो उनके बीच जो फोर्स होगा दैट विल बी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। सो द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज रियली लेस। That's the reason we generally don't see it in our everyday life. लेकिन since अर्थ का मास इतना हाई है, that's the reason अर्थ can attract all the bodies. सन का मास और भी हाई है, so sun holds all planets in its orbit. अब फिर क्या हुआ, इसी कैपिटल जी की वैल्यू को यूज करके बाकी साइंटिस्ट ने अर्थ का मास भी कैलकुलेट किया, विच वॉज लेटर फाउंड टू बी द मास ऑफ अर्थ इज एक्चुअली 6 इंटू 10⁻24 kg, यानी कि 6 with 24 additional zeros. Up years later, up to many years, this theory of gravitation, law of gravitation was actually accepted and it passed out every test it was put on at that time. लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद आए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल एंड जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना आर एक्चुअली इक्वलेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट डिफरेंट। उन्होंने बताया दे आर सेम एस्पेक्ट्स। तो ही टोल्ड कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ वेव्स क्रिएट होते हैं और ये वेव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे ट्रैवल करती है। देन ही सेड सिंस कोई भी बॉडी फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट नहीं ट्रैवल कर सकती, सो दिस इज कि लाइट खुद ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स-रेज, गामा रेज, ऑल आर काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन अब प्रॉब्लम आई कि न्यूटन, सिंस सर आइजैक न्यूटन ने नॉट जस्ट अ सिंगल थ्योरी दी, उन पूरा न्यूटनियन मैकेनिक्स इज बेस्ड ओवर हिज लॉज। सर आइजैक न्यूटन की लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर आप बहुत तेज दौड़ें सो यू कैन कैच द लाइट, आप लाइट को भी कैच कर सकते हैं। लेकिन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया कि कोई भी बॉडी एट द स्पीड ऑफ लाइट और फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट नहीं जा सकती। सो देयर वाज अ कंफ्यूजन फॉर द साइंटिस्ट टू whom to believe on, whether Sir Isaac Newton or James Clerk Maxwell. फिर आया द ईयर ऑफ 1905
जहां पे एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड अननोन क्लर्क एट द स्विस पेटेंट ऑफिस ने रिसर्च पेपर इस्टेब्लिश किया एंड दैट वाज ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। नाम ही यही था, ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। अब क्या हुआ कि दिस theory was later named to be the special theory of relativity। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू थ्योरीज को फाइनली सॉल्व किया और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, वेदर दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेटिंग इवन, तो अगर हम किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो स्पीड ऑफ लाइट इज सी इन वैक्यूम सेम फॉर ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, for all inertial frame of references। तो this confirmed that speed of light is same in all inertial frames। और फिर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये भी बताया कि any body cannot reach the speed of light, so this was later confirmed to be a very great theory। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम arise हुई between Newtonian theory of gravity and Albert Einstein's special theory of relativity। क्या हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि any body cannot move or reach even at the speed of light। न्यूटनियन थियरी ऑफ ग्रेविटी कहती है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर आपके पास यहाँ पे दो मासेस हैं, इफ़ यू हैव टू मासेस हियर, अगर आपने एक मास उठा के और सेपरेशन पे रख दिया, देन द फोर्स बिटवीन देम विल चेंज। भाई फोर्स तो चेंज होगा, आपने सेपरेशन इंक्रीज कर दिया, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, इन हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा फॉर द फोर्स टू चेंज। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थियोरी ये फोर्स तुरंत चेंज हो जाएगा, बिकॉज तुरंत डिस्टेंस चेंज होगा, सो तुरंत फोर्स भी चेंज होगा। लेकिन तुरंत का मतलब इंस्टेंटेनियसली एट इनफाइनाइट स्पीड विच इज़ वेरी मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा, मेरी थियोरी कहती है कि नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, और न्यूटन तो कहते हैं कि दिस विल इंस्टेंटली चेंज। हाउ इज दिस पॉसिबल? इज न्यूटन रॉन्ग और आई एम? सो इवन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज टेंशन देन एंड ऑफ कोर्स ही विल बी। उन्होंने इतनी ग्रेट थियोरी दी एंड इतना ज़्यादा फेम अर्न किया, सो ही विल बी थिंकिंग दैट व्हाट इफ द थियोरी इज डिस्प्रूव्ड। फिर 1908 से लेके 1915 तक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ही हार्ड वर्क किया, वेरी मच अ लॉट, और फाइनली दिस वाज ऑल टू मेक द स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द न्यूटनियन थियोरी ऑफ ग्रेविटी कंसिस्टेंट विथ ईच अदर। और इन्होंने दोनों थियोरीज को यूनिफाई किया और फाइनली एक न्यू थियोरी ऑफ ग्रेविटी दी, एंड दिस इज व्हाट वी बिलीव टू बी करेक्ट टुडे। उन्होंने द जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप की इन द ईयर ऑफ 1950। He said gravity is not a force like other forces, and he even said that gravity is not a force after all. Since Newton's theory कहती है that it is due to the masses of two bodies and all. Sir Albert Einstein ने कहा that actually there is nothing difference between space and time, instead both are the same things, there exists space time। Like I would like to give you a review of dimensions। जैसे किसी भी बॉडी की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट उसके डायमेंशंस कहलाते हैं। आइंस्टाइन ने कहा दैट एक और डायमेंशन होता है इंस्टेड ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट, एंड दैट इज द टाइम डायमेंशन। आपको किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए टाइम भी बताना पड़ेगा कि कितने टाइम पे उसकी ये पोजीशन थी। सो देयर आल्सो एग्जिस्ट्स अ टाइम डायमेंशन, नॉट जस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स बट आल्सो अ टाइम कोऑर्डिनेट। और पूरे यूनिवर्स में एक होती है फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। सिंस स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव, तो पूरे यूनिवर्स में देयर एग्जिस्ट द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में रहता है, एंड वी ऑल आर प्रेजेंट इन दिस फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, एनी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन दिस फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, क्या होता है कि ये इस फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम को कर्व करता है, एंड दिस बेंड्स द स्पेस टाइम। अब जब ये कर्व करता है, दिस इज लाइक अ ट्रैम्पोलिन, व्हेन यू पुट अ हैवी बॉल ऑन इट, सो इट कर्व्स द ट्रैम्पोलिन। द सेम वे इज दिस, जो स्पेस टाइम होता है, जब कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट मास आ जाते हैं, इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा मास हो जाता है, तो दिस कर्व्स स्पेस टाइम। और फिर कोई भी दूसरा थोड़ा लाइट ही मास का ऑब्जेक्ट अगर हमने इस कर्व्ड एरिया ऑफ स्पेस टाइम में रखा, तो ये थोड़ा लो मास का ऑब्जेक्ट विल इंस्टेंटली गो
go to the high mass का object. Now this is what is gravity. Gravity कोई force नहीं है. This is not invisible force as predicted by Sir Isaac Newton. Actual में gravity is curvature of space time. तो अगर ये bodies they move close to each other, क्योंकि इनके बीच invisible force हो रहा है, act हो रहा है, so this is really not correct. ये क्यों एक दूसरे के पास आ रही है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बॉडी, यहाँ पे सेकेंड, दोनों स्पेस टाइम को कर्व की. जब इनका स्पेस टाइम कर्वेचर का एरिया दे गेट थ्रू द सेम पॉइंट, जब ये बॉडी इसके कर्व्ड एरिया में लाई करेगी, ये बॉडी इसके कर्व्ड एरिया में लाई करेगी, सो दे विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गोइंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास. एंड दिस इज व्हाई द टू बॉडीज कम क्लोज. बल्कि यहाँ पे कोई फोर्स थोड़ी ना लग रही है, यहाँ पे तो बस कर्व्ड स्पेस टाइम है जिसकी वजह से बॉडीज क्लोज आती हैं. सो दिस इज रियली व्हाट इज रियलिटी. There is nothing like gravity, instead the curvature of space time. बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि as predicted by the Newtonian theory of gravity, कि न्यूटन ने कहा था कि the sun holds the earth in orbit because of gravitational force on the earth acting by the sun. लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि सन का मास इतना हाई है कि इसने स्पेस टाइम को इतना ज़्यादा कर्व कर दिया. एंड सिंस द अर्थ वाज ऑलरेडी सेट इन मोशन इन दैट कर्व्ड एरिया, तो इसीलिए फॉर दिस वेरी सेम रीजन इट स्टार्ट्स ऑर्बिटिंग द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन. आइंस्टाइन ने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया, लाइक यू मे कॉल इट, अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, सपोज दिस इज वेरी ग्रेट डिस्टेंस, दिस इज फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री, सपोज दिस इज टू यूएसए. अब अगर आपको यहाँ पे पहुँचना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस वे, आप इस तरीके से जाओगे. लेकिन फिर अगर आपने यही डिस्टेंस आउटर स्पेस से देखा तो ये डिस्टेंस एक आर्क बन जाएगी. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन अर्थ इज नॉट दिस स्ट्रेट वे, इंस्टेड दिस इज दिस आर्क. तो अगर आपने इस आर्क के थ्रू ट्रैवल किया, देन यू आर ट्रैवलिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड जियोडेसिक. तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यू विल बी सेड टू बी योर जियोडेसिक. अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा इट इज नॉट दैट वी फॉलो एन आर्क. ये ऐसा नहीं है, हम लोग स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं ऑन अर्थ, लेकिन हम लोग एक कर्व्ड सरफेस पे मूव करते हैं जिसकी वजह से हमारा पाथ कर्व्ड हो जाता है, वरना हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन ही करते हैं. द सेम वे इज प्लैनेट. यहाँ पे है सन जिसने स्पेस टाइम को कर्व कर दिया. सिंस द अर्थ एंड ऑल प्लैनेट्स लाई इन दिस कर्व्ड एरिया ऑफ स्पेस टाइम, क्या होता है, सारे प्लैनेट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, लेकिन ये कर्व्ड स्पेस टाइम में, जहाँ पे स्पेस टाइम कर्व्ड है तो वहाँ पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो पाथ है वो हमें कर्व्ड दिखता है. वरना इफ द स्पेस टाइम वुड एवर बी फ्लैट, सो दिस पाथ वुड बी सेड टू बी फ्लैट. This path would be straight line motion. They would be having straight line motion. So there is nothing like gravity. Instead, the Earth and all planets follow geodesics in curved space time around the sun. अब आया एक न्यू कंसेप्ट कि अगर सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है, तब जो लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार होगी, फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार, जो सन को थोड़ा पास करते हुए अर्थ पे आएगी, सिंस वो भी सन के पास स्पेस कर्व्ड है, तो वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन जो लाइट करती है वो भी कर्व्ड स्पेस में करेगी, यानी कि लाइट का जो पाथ होगा वो हमें कर्व्ड दिखेगा. दिस वाज शॉकिंग कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रैवल करेगी, दिस विल मूव इन कर्व्ड डायरेक्शन. तो सिंस द प्रेडिक्शंस ऑफ द थ्योरी it couldn't be well predicted, the observations was not well matched with the general theory of relativity initially. Actual में कोई observation was not available to even test the theory. लेकिन फिर आया ईयर ऑफ 1919, जब एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर ने ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स, क्योंकि जब सन दिखता है तो वहाँ पे लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार विल बी वेरी मच ब्लर्ड, वी कैन नॉट सी दैट. सो ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टेस्ट करने का सोचा. बाद में उन्होंने देखा कि जो लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार इज कमिंग वो रियली में डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जितना वो डिफ्लेक्ट होती है दैट इज सेम एज प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. यानी कि द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अबाउट कर्व्ड स्पेस टाइम एंड ग्रेविटी इज रियली करेक्ट. सो
From then up to now we are believing in Einstein's general theory of relativity. Actually, there are many theories still for gravity. Some people still believe that gravity is caused due to the masses between two bodies, because all bodies have masses. कुछ लोग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बिलीव करते हैं बिकॉज दिस इज कर्व्ड स्पेस टाइम. वेल, एक और थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है जो कहती है कि एवरी पार्टिकल या फिर एवरी फोर्स हैज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ पार्टिकल, राइट. तो क्या होता है कि अगर हमें दो बॉडीज़ के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर कोई भी फोर्स एक्सर्ट कराना है, सो द पार्टिकल्स, द टू बॉडीज़ विल बी शेयरिंग सम काइंड्स ऑफ स्पेशल पार्टिकल्स ड्यू टू व्हाट दे कैन इंटरेक्ट टू ईच अदर. And such a particle for describing the gravitational force is known as a graviton. But the presence of graviton, existence of graviton haven't been experimentally proved till now. If we can prove, means that theory is really correct. वरना हम लोग अभी तो recently general theory of relativity में ही believe करते हैं. There is still a conflict between general relativity and Heisenberg's uncertainty principle, which is some sort of quantum mechanics. Who will solve the conflict soon and have a new description of gravitation? And I will be very glad if I could make ever a video on that chance. That will be really great moment even for me, describing a new wave of gravitation at the very quantum level. So that was just all what I wanted to tell you today. Thanks to you all for watching this video, and Jai Hind, Jai Bharat.